प्रणाम। मैं हर्ष जोशी, विक्रमशिला IAS 14 बीघा ऋषिकेश कोचिंग इंस्टीट्यूट का छात्र आज आपके समक्ष एनवायरनमेंट एंड लॉ पर कुछ तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनवायरनमेंट की। तो पर्यावरण के लिए कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे संविधान में कुछ अनुच्छेद या कुछ लॉज दिए गए हैं। सबसे पहले आर्टिकल 48A। आर्टिकल 48A says that protection and improvement of natural environment and wildlife. The next, article 51A clause 7 says that protection and improvement of natural environment and protection and safeguarding of rivers, lakes, forests and wildlife, and to have compassion for living creatures. The next we have 7th schedule, and there are 3 lists of 7 schedule. The first is union list, second state list, and the third is concurrent list. So the article 52 of union list says that industries, 53 oil fields and minerals. The third, 54 says that mines and minerals. 55 says that regulation of labor and workforce, regulation of labors and safety in oil fields. 56 development of interstate rivers and river valleys. 57 says that fishing in the India's territory. The next we have state list. So article 6 of state list says that public health and sanitation or hospitals or dispensaries. The next, article 14 says that agriculture and agricultural research, protection of plants, protection from pests and plant diseases. The next is 17. It says that irrigation. The next is 18. 18 says that land development and improvement, and the last, fisheries. The last is 21, which says fisheries. The next is next are the subjects of concurrent list. So first, article 17A, it says that it states forest. The next is 17A, it says protection of wildlife, protection of plants and birds. The next is 20. Next says that economic and social planning, and the last one, 20A, says that family population control and family planning. The next topic we have the laws and acts made before Indian independence. Now some acts relating to water pollution before Indian independence. The North Canal and Drainage Act of 1873. The Obstruction and Fairways Act of 1881. The Indian Fisheries Act 1897. Now some acts relating to air pollution before Indian independence. The Oriental Gas Company Act of 1857. The next act is the
the Explosives Act of 1908. Now the next is the Boilers Act of 1923, and the last is the Motor Vehicle Act of 1938. Now some acts regarding to conservation of forests. The Indian Forest Act of 1927. Now some act regarding pesticide before independence. The Poison Act of 1919. Now some acts relating to the disputes of agriculture. The Mysore Destructive and Pest Act of 1917. The Andhra Pradesh Agriculture Disease and Pest and Disease Act of 1919. The Kerala Agriculture Disease and Pest and Disease Act of 1917. Now some acts after independence. The Pesticide Act, Keetnashak Adhiniyam of 1968. The Wildlife Protection Act of 1972. The Water Prevention and Control of Pollution Act of 1974. The Forest Conservation Act of 1980. The Air Prevention and Control of Pollution Act of 1981. The Environmental Protection Act of 1986. The Factory Amendment Act of 1987. And the last, the Biodiversity Act of 2000. And our last topic will be NGT, National Green Tribunal, Rashtriya Harit Nyayadhikaran, which is established in 2010 by NGT Act of 2010. So first we will talk about the Pesticide Act of 1968, कीटनाशक अधिनियम. ये राष्ट्रीय पर्यावरण सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण अधिनियम था. इसके अंतर्गत इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि कीटनाशकों पे प्रतिबंध लगाया जाए या फिर उनका लिमिटेड यूज किया जाए. इसके अंतर्गत राष्ट्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला की स्थापना की गई. राष्ट्रीय कीटनाशक न्यायाधिकरण की भी स्थापना की गई. नेक्स्ट है हमारा द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1972. इसके अंतर्गत जितने भी वन्य जीव जंतु एवं पक्षी थे उनके कंजर्वेशन के लिए नियम बनाए गए. कुछ विलुप्त होने वाली प्रजातियां या एक्सटिंक्ट स्पेशीज को भी इसके अंतर्गत रखा गया. इसके अंतर्गत कुछ बाघ क्षेत्र निर्धारित किए गए और बाघ संरक्षण की शुरुआत की गई. इस न्यायाधिकरण इसके अंतर्गत पर्यावरण न्यायाधिकरण को ये सुविधा प्रदान की गई कि वो इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान कर सकेगा और 25,000 तक का जुर्माना एवं 6 माह तक की कारावास की सजा भी सुना सकेगा या अथवा दोनों कर सकेगा. इसके अंतर्गत वन अभयारण्यों, बाघ क्षेत्रों एवं इन सबको रिजर्व किया गया और इसमें मानव गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया.
इन क्षेत्रों के भीतर आग का जलाना वर्जित था और यहाँ से लकड़ी इकट्ठा करना, पेड़ों की छाल इकट्ठा करना, ये सभी मानव के लिए वर्जित कर दिया गया। नेक्स्ट है हमारा वाटर प्रोटेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत एक वाटर बोर्ड की स्थापना की गई, जिसको ये प्रावधान किया गया कि जितनी भी फैक्ट्रीज थी उनसे निकलने वाले जो भी दूषित पदार्थ जैसे कि सीसा, पारा, लेड, मरकरी, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इस तरह की जो विषैली गैसें हैं उन पे प्रतिबंध लगाया जाए और कारखानों को ये निर्देश दिए गए कि इनको पहले शोध करके उसके बाद ही नदी में विसर्जित किया जाए। इस न्यायाधिकरण को ये प्रावधान, ये शक्ति दी गई थी कि ये किसी भी कारखाने पर पानी या बिजली जैसी सुविधाओं पर रोक लगा सके या उन्हें विनियमित कर सकेगा। इसके अंतर्गत यह भी प्रावधान किया गया कि कोई भी नया कारखाना खुलने से पहले जल निगम से अनुमति लेगा, उसके बाद ही ये कोई भी कारखाना खुल सकेगा अथवा वो मान्य नहीं होगा। नेक्स्ट आता है द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। इसके अंतर्गत हमारे वनों को सुरक्षित किया गया। नेक्स्ट है द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1981। इसके अंतर्गत फैक्ट्री से निकलने वाले जितनी भी हार्मफुल गैसेस हैं, जितने भी कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ हैं, उन सभी पे रोक लगाई जाए और जितनी भी व्हीकल्स यानी गाड़ियां हैं उनसे निकलने वाला जो भी प्रदूषण है उसके लिए मानक निर्धारित किए गए। नेक्स्ट है द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। इसके अंतर्गत यह काफी महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसके अंतर्गत 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के अंतर्गत इस एक्ट को बनाया गया। यह एक्ट 1986 में आई। इसके अंतर्गत यह निर्धारित किया गया कि पर्यावरण को दूषित करने के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उस पर 500 रुपए का जुर्माना और 6 माह तक का कारावास किया जाएगा। और इस एक्ट की सबसे विशेषता यह थी कि इस पे कोई भी व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकेगा, कोई भी जो भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है उसके खिलाफ। नेक्स्ट है फैक्ट्री अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1987। यह हमारी द फैक्ट्री अधिनियम 1948 को में अमेंडमेंट एक्ट थी जो कि 1987 में करी गई। नेक्स्ट है हमारा द बायोडायवर्सिटी एक्ट ऑफ 2000। इसके अंतर्गत हमारी जैव विविधता के संरक्षण की बात की गई। नेक्स्ट है हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। इसकी स्थापना 2010 में NGT एक्ट 2010 के द्वारा की गई। इसका प्रधान पीठ दिल्ली में है और भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद तीसरा ऐसी व्यवस्था लागू करने वाला देश बन गया है। इसकी अन्य 4 आंचलिक पीठों की स्थापना करने का प्रावधान किया गया था जो कि स्थापित हुई हैं। वो है भोपाल, चेन्नई, पुणे, कोलकाता। इसी के अंतर्गत इसमें टोटल 5 ब्रांचेस हैं। इसके अंतर्गत 20 एनवायरमेंटल एक्सपर्ट या पर्यावरणविद और अधिकतम 20 न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के भी प्रावधान थे।
धन्यवाद।